Dear 10th class students, in this video I am going to solve question number 8 from exercise 4.6. क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समीकरण x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल 0 के दोनों मूल वास्तविक तथा बराबर तभी होंगे जब a इक्वल बी इक्वल सी हो। सी सॉल्यूशन। Here given equation x minus a x minus b plus x minus b x minus c plus x minus c x minus a x minus c x minus a equal 0. Simplify this equation and make in form ax square plus bx plus c equal 0. Since this given equation is quadratic equation, here multiply both. B may write x square minus bx minus ax plus ab plus ab plus x minus b x minus c. By multiplying, b may write here x square minus cx minus bx plus bc plus x square minus ax minus cx plus ac equal 0. Here we get x square is equal to 3x square minus bx minus 2bx minus ax minus 2ax minus cx minus 2cx minus 2ax minus 2bx minus 2cx plus ab plus bc plus ca plus ab plus bc plus ca equal 0. Here we may write 3x square minus 2x a plus b plus c plus ab plus bc
plus CA equal 0. Here, by comparing this equation with standard form quadratic equation ax square plus bx plus c, we may write here a equal 3, b equal minus 2 into a plus b plus c, and c equal ab plus bc plus ca. Here roots will be real and equal if discriminant b square minus 4ac equal 0. Here put value a, b and c. We may write minus 2 a plus b plus c whole square minus 4 into 3 into c ab plus bc plus ca equal 0. From here we get 4 a plus b plus c whole square minus 12 ab plus bc plus ca equal 0. Since you know that a plus b plus c whole square equal a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca, here apply a plus b plus c whole square. We may write 4 a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca minus 12ab minus 12bc minus 12ca equal 0. Now see here, we may write 4a square plus 4b square plus 4c square plus 8ab plus 8bc plus 8ca minus 12ab minus 12bc minus 12ca
AB minus 12 BC minus 12 CA equal 0. We get 4A square plus 4B square plus 4C square minus 4AB minus 4BC minus 4CA equal 0. Here we take common 4. We get A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA equal 0. We get A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA equal 0. Since above equation will satisfy if you are seeing here, if we put A equal B equal C, then left side will be 0. So we may write here above equation, it means this equation A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus CA equal 0 will satisfy if A equal B equal C. So we may write here roots are given equation real and equal when A equal B equal C. This is proved. बच्चों, यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर फॉर्म में गिवन थी, उसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में बनाए। इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C की वैल्यू फाइंड किए और यहाँ ये प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल और रियल तभी होंगे जबकि A इक्वल B इक्वल C होगा। और यहाँ हमें B स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल 0 करने पर क्यों 0 किया? इसलिए क्योंकि ये जानते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स तभी इक्वल और रियल होते हैं जबकि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होता है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 करने पर हमें ये इक्वेशन ABC में फाइंड हुई। और यहाँ यह देखते हैं कि यह इक्वेशन की लेफ्ट साइड तभी 0 हो सकती है जबकि A इक्वल B इक्वल C हो, अदरवाइज यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। और ये मीन्स राइट साइड 0 गिवन है
ये लेफ्ट साइड 0 नहीं हो सकती है और किसी भी कंडीशन से केवल एक कंडीशन यहाँ हमें दिखती है, A = B = C। सो we may write here roots are real and equal when A = B = C। Students, now you see exercise 4.7। here given question number 1, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो तथा उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी बगिया बनानी संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। यह बताने के लिए कि पॉसिबल है इस प्रकार की बगिया या नहीं, इसके लिए हम बगिया की लेंथ और ब्रीथ दोनों को सपोज करते हैं और फिर यदि गिवन कंडीशन के अंतर्गत हमें लेंथ और ब्रीथ प्राप्त होती है तो कहेंगे पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। दिस क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 4.7। क्वेश्चन एक बार और ध्यान से सुनिए। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनानी संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी हो और उस बगिया की एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो? माना बगिया की लंबाई इक्वल x और चौड़ाई इक्वल y। नाउ हियर वी may write according to the first condition। गिवन इन क्वेश्चन लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। यहाँ लेंथ x सपोज किया हूँ और चौड़ाई y सपोज किया हूँ और क्वेश्चन में गिवन है लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है, ये 2 गुनी है। तो यदि हम 2 से मल्टीप्लाई y में कर दें तो ये दोनों इक्वल होंगे, मीन्स x = 2y होगा। एंड we may write according to the second condition। गिवन बगिया की एरिया मीन्स लेंथ इंटू ब्रीथ x इंटू y इक्वल 800 मीटर स्क्वायर। हियर पुट द वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल 2y, 2y into y equal 800
we get 2y square equal 800 and y square equal 400. So we get the value of y equal plus minus square root 400. We get y equal plus minus 20. Since negative value of y is impossible, so we get y equal 20. And from first we get x equal 2y, 2 into 20 equal 40. यहाँ हमें बगिया की लेंथ 40 और ब्रीथ y इक्वल 20 फाइंड हुई। बच्चों यहाँ देखिए, ये जो लेंथ फाइंड हुई ये ब्रीथ की दोगुनी है, और यदि अब एरिया फाइंड करें उस बगिया की जिसकी लेंथ 40 मीटर और ब्रीथ 20 मीटर है, तो 20 इंटू 40 इक्वल 800. सो इट इज पॉसिबल. इट मीन्स बगिया बनाना संभव है, एंड लेंथ लंबाई इक्वल x सपोज किए थे और x की वैल्यू 40 फाइंड हुई, सो वी में राइट लंबाई इक्वल 40 मीटर एंड ब्रीथ चौड़ाई इक्वल y, और y की वैल्यू 20 फाइंड हुई, सो चौड़ाई इक्वल 20 मीटर. दिस इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है. आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है. बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं. बस इतना करना है, क्वेश्चन को रीड करें और सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 2. दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो क्या ये स्थिति संभव है? मीन्स जो गिवन है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए. मान लेते हैं यहाँ पहले मित्र की आयु इक्वल x वर्ष तथा दूसरे मित्र की आयु इक्वल y वर्ष. Now we may write according to the first condition.
गिवन इन क्वेश्चन दो मित्रों की आयु का योग 20 ईयर है। यहाँ हमने पहले मित्र की आयु x वर्ष सपोज की, दूसरे मित्र की आयु y वर्ष सपोज की। सो हियर वी मे राइट x plus y equal 20. From here we may write y equal 20 minus x. Suppose this is first equation. Next given in question 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। Now according to the second condition, we may write आज प्रेजेंट एज यदि x ईयर है तो 4 ईयर के पहले मित्र की एज 4 ईयर लेस होगी, मीन्स x माइनस 4 होगी, और दूसरे मित्र की एज y माइनस 4 होगी। एंड गिवन इन क्वेश्चन मल्टीप्लीकेशन of both age equal 48. Simplify this, we may write xy minus 4x minus 4y plus 16 equal 48. We may write xy minus 4x minus 4y plus 16 minus 48 will be minus 32 equal 0. Now we put value of y from equation first. Here we may write x into 20 minus x minus 4x minus 4 into y 20 minus x minus 32 equal 0. Here we get 20x minus x square minus 4x minus 80 plus 4x minus 32 equal 0. We may write minus x square 20x, here minus 4x will cancel, so minus x square plus 20x and here minus 80 minus 32 will be minus 112 equal 0. And here multiply by minus 1 on both sides, we may write x square minus 20x plus 112 equal 0. Here factorize this equation, or by Sridharacharya formula we find value of x. Here a equal 1, b equal minus 20 and c equal 112.
Now we may write x equal minus b 20 plus minus under root b square minus 20 square 400 minus 4ac minus 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 divide by 2a 2. We get x equal 20 plus minus under root minus 48 divide by 2. यहाँ x की कोई भी वैल्यू पूर्णांक नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एज होगी वो पूर्णांक होगी, वो भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है, काल्पनिक नहीं हो सकती है, वो रियल होगी और पूर्णांक होगी. बट हियर यू सी b square minus 4ac equal minus 48, who is negative and less than 0. So value of x will be imaginary, not real. So we may write it is not possible. It means ये संभव नहीं है कि दो मित्रों की एज का योगफल 20 ईयर हो और 4 ईयर के पहले उनके एज का गुणनफल 48 हो. ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ हमने पहले मित्र की आयु को x वर्ष सपोज किया था और यहाँ देखते हैं x की कोई भी रियल वैल्यू फाइंड नहीं होती है. और जब रियल वैल्यू कोई x की फाइंड नहीं होती है तो हम कह सकते हैं आयु यहाँ हमें कुछ भी फाइंड नहीं होती है रियल. इसलिए ये कंडीशन जो गिवन है क्वेश्चन में नॉट पॉसिबल. सो वी मे राइट हियर इट इज नॉट पॉसिबल एंड दिस विल बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यहाँ पेरीमीटर 80 गिवन है और एरिया पार्क की 400 मीटर स्क्वायर है. और यदि पॉसिबल है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है. क्वेश्चन को एक बार सुनिए और समझिए, तब हल समझ में आएगा. क्या एक ऐसे पार्क को बनाना पॉसिबल है जिसका परिमाप 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो? और यदि पॉसिबल है तो उस पार्क की लंबाई और चौड़ाई फाइंड करनी है. माना पार्क की लंबाई इक्वल x मीटर और चौड़ाई इक्वल y मीटर. Then we may write according to the first condition perimeter
will be 2 into length plus breadth x plus y equal 80. We get x plus y equal 40, and we may write y equal 40 minus x. Suppose this is first equation, and we may write according to the second condition. Area of park is given in question 400 meter square. So we may write x into y. This will be area of park equal to 400. Now we put value of y from equation first. We may write x into 40 minus x minus 400 equal 0. We get 40x minus x square minus 400 equal 0. We may write this equation as x square minus 40x plus 400 equal 0. We factorize this equation, write x square minus 20x minus 20x plus 400 equal 0. Here we take common in first two term x minus 20, and from here we take common minus 20, we get x minus 20 equal 0. We get x minus 20, x minus 20 equal 0. Here we get value of x equal 20. So from equation first, we may write y equal 40 minus x, and value of x is equal to 20. So here we may write y equal 40 minus 20. We get y equal 20. So we may write here given condition is possible, and length लंबाई पार्क की इक्वल x, हमने x सपोज किया था, x की वैल्यू 20 फाइंड हुई. सो लंबाई इक्वल 20 मीटर एंड चौड़ाई equal 20 meter. This is answer. Question number 4. यदि एक किताब का मूल्य ₹5 कम कर दिया जाए तो एक व्यक्ति ₹300 में 5 किताब अधिक खरीदता है.
यदि एक किताब का मूल्य ₹5 लेस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो व्यक्ति ₹300 में 5 बुक अधिक खरीदता है। तो किताब का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। हियर गिवन इन क्वेश्चन, तो 7 किताबों का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। दिस इज मिसटाइप्ड। यहाँ किताब का वास्तविक सूची मूल्य ज्ञात कीजिए यह लिखा होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में मिसटाइप्ड है। क्वेश्चन नंबर 4, माना किताब का वास्तविक मूल्य इक्वल एक किताब का, माना एक किताब का वास्तविक मूल्य इक्वल X रुपया। यदि एक किताब का वास्तविक मूल्य X रुपया है तो 300 रुपीज में कितनी किताबें मिलेंगी, इसके लिए क्या करेंगे? 300 में जो एक किताब का मूल्य है उससे डिवाइड करेंगे। हियर वी मे राइट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। एक किताब का वास्तविक मूल्य X रुपया है तो 300 रुपया में कुल किताबों की संख्या 300 डिवाइड बाई X होगी, और जब मूल्य 5 रुपीज लेस कर दिया जाता है तब टोटल 300 बाई X माइनस 5 किताबें खरीद सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ₹5 कम कर दिया जाए किताब का मूल्य, तो ₹300 में 5 किताब अधिक खरीदता है। ये जो नंबर है ये 5 ग्रेटर है इस नंबर से, सो वी ऐड 5 हियर, देन both are equal. We may write 300 by X minus 300 divided by X minus 5 plus 5 equal 0. We simplify this. X minus 5, here 300 into X minus 5 minus 300X plus 5 into X minus 5 into X minus 5 equal 0. Here we get 300X minus 1500 minus 300X plus 5X square minus 25X
equal 0. We get here 300x will cancel, 5x square minus 25x minus 1500 equal 0. Here we take common 5, we get x square minus 5x minus 300 equal 0. We get x square minus 5x minus 300 equal 0. Now we factorize this equation. X square minus 20x plus 15x minus 300 equal 0. Here take common x, we get x minus 20 plus 15 x minus 20 equal 0. We get x minus 20 x plus 15 equal 0. We get value of x equal 20 or minus 15, but real value of book will not be negative, so here we accept value of x equal 20, so x equal 20. एक किताब का वास्तविक मूल्य इक्वल x हमने सपोज किया था और x की वैल्यू 20 फाइंड हुई, 20 रुपया। क्वेश्चन नंबर 5, एक कार्य को पूरा करने में B की तुलना में A 6 दिन कम लगाता है। यदि A तथा B दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं तो बताइए B अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। यह क्वेश्चन काम समय से रिलेटेड है, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य को पूरा करने में B की तुलना में A 6 दिन कम लगाता है। A तथा B दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हों तो बताइए B अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। मान लिया B अकेला उस कार्य को X दिन में पूरा करेगा। चूंकि क्वेश्चन में गिवन है A किसी कार्य को पूरा करने में
बी से 6 दिन कम लगाता है, इसलिए ए अकेला उस कार्य को X-6 दिन में पूरा करेगा। Here, according to the question, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए तथा बी का 1 दिन का कार्य इक्वल 1/4। ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं किसी कार्य को, तो ए तथा बी 1 दिन में उस कार्य का 1/4 भाग करेंगे। मीन्स ए तथा बी का 1 दिन का कार्य इक्वल 1/4 होगा। यहाँ ए का 1 दिन का कार्य, चूंकि ए X-6 दिन में पूरा करता है उस कार्य को, इसलिए ए का 1 दिन का कार्य 1/X-6 होगा और बी का 1 दिन का कार्य 1/X होगा, और ये दोनों कार्य ऐड करने पर टोटल 1/4 के इक्वल होगा। Here we simplify this X-6 X plus X-6 equal 1/4. We get 2X-6 divided by X square minus 6X equal 1/4. 8X minus 24 equal X square minus 6X. We may write this equation as X square minus 14X minus 24 equal 0. Here we factorize this equation. Write X square minus 12X minus 2X minus 24 equal 0. X minus 12 minus 2X minus 12 equal 0. We get X minus 12 X minus 2 equal 0. Here we get value of X equal 12 or 2. But यदि B 2 दिनों में उस कार्य को करता है, तो A 6 दिन कम, 2 से 6 दिन कम करें, 6 लेस करें तो -4 फाइंड होगा, और दिनों की संख्या निगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ x की वैल्यू 6 से कम नहीं हो सकती है, इसलिए 2 इज नॉट पॉसिबल हियर। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल 12। हमने ये सपोज किया था कि B अकेला उस कार्य को x दिन में पूरा करेगा, और क्वेश्चन में ये पूछा गया है
कि उस कार्य को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। हमें x की वैल्यू 12 फाइंड हुई, इसलिए बी अकेला उस कार्य को ट्वेल्व दिनों में करेगा। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। यदि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 400 वर्ग सेंटीमीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी हैं। I have told you this type question already, so you solve this question yourself. क्वेश्चन नंबर 7, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल 124 था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दिस क्वेश्चन आल्सो यू सॉल्व योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, रेणु अपनी नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शांत पानी में चलाती है। यदि धारा की दिशा में लौटने के बजाय धारा के विपरीत दिशा में 5.25 किलोमीटर नाव चलाने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। माना धारा की गति इक्वल x किलोमीटर पर आवर। सो धारा की दिशा में रेणु की नाव की गति इक्वल, सिंस गिवन इन क्वेश्चन रेणु शांत जल में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से नाव चलाती है। 5 + x किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत दिशा में, धारा के अपोजिट, धारा के विपरीत दिशा में रेणु की नाव की गति इक्वल 5 - x किलोमीटर पर आवर। शांत जल में जो रेणु के नाव की गति है उसमें से धारा की गति को माइनस कर देते हैं। धारा की विपरीत दिशा में इफेक्टेड स्पीड फाइंड करने के लिए। नाउ वी may write according to the question, धारा की दिशा में 5.25 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा टाइम डिस्टेंस 5.25 डिवाइड बाई स्पीड 5 + x।
धारा की विपरीत दिशा में 5.25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में लगा टाइम 5.25 डिवाइड बाई 5 माइनस एक्स। और क्वेश्चन में गिवन है धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में उसे धारा की दिशा में नाव चलाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लगता है। ये टाइम 1 आवर अधिक है इस टाइम से, सो वी सब्ट्रैक्ट 1 एंड देन बोथ टाइम विल बी इक्वल। We may write 5.25 divided by 5 plus x minus 5.25 divided by 5 minus x plus 1 equal 0. Here we take common 5.25. We get 1 by 5 plus x minus 1 by 5 minus x plus 1 equal 0. This 5.25 we may write as 525 divided by 100, and this will be 25 4 जा 100, 25 2 जा 50, 25 1 जा 25, 5 minus x minus 5 minus x divided by 25 minus x square plus 1 equal 0. We get 21 by 4. Here 5 will cancel. We get minus 2x divided by 25 minus x square plus 1 equal 0. We get minus 42x plus 100 minus 4x square equal 0. Here dividing by 2 we may write minus 2x square minus 21x plus 50 equal 0, and we may write this 2x square plus 21x plus 50 minus 50 equal 0. 2x square plus 25x minus 4x minus 50 equal 0. Here take common. This we may write as 2x square minus 4x plus 25x minus 50 equal 0. Now we take common 2. We get 2x minus, here 2x, x minus 2 and plus 25 x minus 2
equal 0, we get x minus 2, 2x plus 25 equal 0, we get x equal to r minus 25 by 2. But speed cannot be negative, so x equal 2. अतः धारा की चाल इक्वल हमने x किलोमीटर प्रति घंटा सपोज किया था, x की वैल्यू 2 फाइंड हुई, तो धारा की चाल इक्वल 2 किलोमीटर पर आवर. दिस इज आंसर. नाउ you solve remaining questions from exercise yourself, and if you have found any problem anywhere, tell me. That's all in this video. All the best.